Yes. Thank you very much. Topic of my today lecture is the perimeter and area of 2D and 3D. Up to class 6, we have only discussed 2D means two-dimensional shape and 3D means three-dimensional shape. I will discuss what is the meaning of 2D and 3D, but basically we are going to discuss about the perimeter and area of 2D shape and the 3D shape. So first we should define what is the perimeter. See, this is again a warm-up situations. At this stage, the student should know the meaning of perimeter. I am just repeating, the sum of the length of all the sides of the 2D closed figure is known as the perimeter. 2D closed means 3D closed bhi hoga. The unit of perimeter may be kilometer, meter, centimeter and millimeter, etc. Only these 4 units are used. There are other units also, but 4 units are used. When I say unit square means kilometer square, meter square, centimeter square and millimeter square. And I will also discuss about the conversion. Area. It is defined as the region by a plain 2D closed figure and unit of the area may be kilometer square as I mentioned. Now, that's very important that since we will discuss the perimeter area only 2 units, for example, meter and centimeter, and hence I am going to discuss only the conversion between the meter and centimeter to meter. At this stage, one should know the meter is higher unit in comparison to centimeter. So, if you are going from meter to centimeter, means from higher unit to the lower unit, you have to multiply it by 100. But if you are going from centimeter to meter, from lower to higher, then you have to multiply it by 1 by 100. Here I am only talking of the multiplication by 100 and multiplication by 1 by 100. Now, as far as area is concerned, it is unit square as I mentioned. Meter square, when you go from meter square to centimeter square, you have to multiply it by 10 to the power 4. I will show you why it is 10 to the power 4. Now, when you go from centimeter square to meter square, it is multiplied by 1 by 10 to the power 4. How 10 to the power 4 come into picture? Suppose you multiply 100 into 100, it is 10 to the power 4 because there is 4 0. Similarly, like this, 1 by 100 means 1 by 100 into 1 by 100 means 1 by 1, 1 per 4 shuna. So, 10 to the power 4. See, there is a mixing of the Hindi, so you don't mind it like this. This is like the first thing someone should know about all these things. Now, just see. Perimeter of a triangle, I have said. If this ABC is the perimeter and sides are small ABC, just see, point is always represented by the capital English letter, but arms is always represented by the literal, means small alphabetical. So the perimeter becomes A plus B plus C because there is classification of the triangle. So accordingly, you have to choose the value of A, B, C. Perimeter of a square, it has a 4 sides. All sides are equal. So A plus A plus A plus A is equal to 4A, means 4 into side. Generally, formula should be remembered in terms of the side because sometimes nomenclature can be changed. Nomenclature or notation. Perimeter of a rectangle. Here opposite sides are the same. Opposite parallel sides are the same. So here A and A, B and B. So here A plus A is equal to twice A, B plus twice B. So just it is 2 into length plus breadth. It should be remembered by using this. Now, I am just giving the example. The length of a square field is 35 meters. Now, square means all sides are the same. So, if you want to go to make a perimeter, so 4 into side means 4 into 35 meter. Unit is very, very important. So, it gives about, just see here, step 1, in 1 round of the, find the distance traveled by a man with 3 rounds of a square. तो 1 राउंड में क्या होगा 4 into sides हो जाएगा और 3 में क्या होगा 3 into 4 into sides हो जाएगा. It is 420 meter. Very simple. I am just refreshing this one, the complex thing. अब देखिए, breadth of the rectangular garden is 6 meter.
अब जब ये वर्ड्स प्रॉब्लम है, इन वर्ड्स प्रॉब्लम यू हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग व्हाट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन. So breadth of the rectangular of a garden is 6 meter, means length is less than the length. जो लेंथ है, लेंथ से 6 मीटर छोटा है. अब देखिए, if the length of a garden is 30 meter, find the perimeter of a garden. अब देखिए, अब यहां पर क्या है, यहां पर केवल यही दिया कि breadth of a rectangle garden is 6 meter less than the length, length is 30 meter. अब 30 मीटर से लेस 6 मीटर क्या होगा, सबसेट कर दीजिए 24 मीटर, मींस ब्रेथ इज 24 मीटर. अब देखिए यहां पर जो है लेंथ ऑफ द गार्डन इज 30 मीटर, ब्रेथ इज 24 मीटर. फार्मूला यूज कर लीजिए 2 into लेंथ प्लस ब्रेथ. कैन गेट द क्वेश्चन. इट इज अ वर्ड प्रॉब्लम. इन अ वर्ड प्रॉब्लम इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द मीनिंग व्हाट इज हैज बीन आस्क्ड. अब देखिए एग्जांपल 3, अगेन ए वर्ड प्रॉब्लम. द कृष्णा बॉट a bed sheet इतना मीटर लॉन्ग and inch is the wide. अब ध्यान से क्या, she wanted to put a lake around it. Find the length of the lake and it cost is 14.5 rupees per meter. So for that you must know about the perimeter because आपका चारों तरफ से आपको निकलेगा. देखिए the length of the lake, perimeter of a rectangular bedsheet 2 into L plus B. अब यहाँ पे देखिए 8 मीटर आ गया. अब कॉस्ट ऑफ द 1 मीटर इज 14, तो कॉस्ट ऑफ 8 मीटर इज मल्टीप्लाइड बाई 8. सिंपल थिंग. सिमिलरली यू कैन गो फॉर दिस रेक्टेंगुलर. अब देखिए ए ट्रेंगुलर पार्क हैज ए साइड. यहाँ पर ABC इज डिफरेंट, लेंथ इज डिफरेंट. फाइंड द लेंथ ऑफ द वॉल टू बी फेंस अराउंड इट. आल्सो डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ द फेंस. इफ 1 मीटर इज कॉस्ट इतना, तो पेरीमीटर निकाल लीजिए, 120 मीटर आ गया. 1 मीटर का कॉस्ट इतना है, तो 120 मीटर कॉस्ट क्या है, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका रिजल्ट आ जाएगा. अब देखिए, अब यहां पर थोड़ा क्वेश्चन डिफर कर गया है. इफ पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर गार्डन इज 100 मीटर, पेरीमीटर इज गिवन, साइड हैज बीन आस्क्ड, सो तो पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 into साइड, सो शुड द वैल्यू ऑफ पेरीमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर. तो साइड क्या हो जाएगा, पेरीमीटर अपॉन 4, 25. सिंपल. बट you have to know the formula for square, triangle and the rectangle. अब देखिए, ये अब यहां पर देख लीजिएगा. अब ये 3D शेप कहा गया है. जो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 3D शेप, व्हाट इज शेप. देखिए दिस इज द 2D डायमेंशन. एरिया क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ए इंटू ए. यूनिट क्या होगा, मीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर. और साइड अगर ए है तो ये हो जाएगा साइड का स्क्वायर. फार्मूला यू हैव टू जस्ट फाइंड आउट लाइक दैट. अब रेक्टेंगल, एल लेंथ एंड ब्रेथ इज गिवन, सो एरिया इज लेंथ इंटू ब्रेथ. मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ इज एल, ब्रेथ इज बी. अब इसको ये भी कह सकते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ. ट्रेंगल, ये भी 2D डायमेंशन है. ट्रेंगल दिया है. यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ट्रेंगल में, बिकॉज स्टूडेंट कंफ्यूज विद मेरिडियन एंड एल्टीट्यूड. मेरिडियन में क्या होता है कि टॉप पॉइंट शुड बी ज्वाइंड विद द मिडिल ऑफ द ऑपोजिट साइड, बट एल्टीट्यूड में नो, इट इज नॉट लाइक दिस. इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए टू BC, दैट इज कॉल्ड द हाइट या एल्टीट्यूड. So area is equal to half base into height or altitude. यूनिट सेम हो जाएगा, यहां डिफाइन कर दिया गया है. हाइट इज इक्वल टू एल्टीट्यूड. अब देखिए पैरेललोग्राम 2D है. अब पैरेललोग्राम का डिफरेंस क्या है कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल. तो AD BC आर इक्वल, AB एंड DC आर इक्वल. अब देखिए सिंपल है. इसमें जो है क्या है, अगर A और C को मिला लीजिएगा तो इक्वल ट्रेंगल बन जाएगा. तो अगर एक ट्रेंगल का एरिया अगर पता है तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. अब देखिए सपोज आई एम गोइंग टू गेट द एरिया ऑफ ABC, तो BC क्या हो गया, B क्या हो गया, बेस हो गया. और अगर ये H है, अगर H है तो हाफ B इंटू H हो गया. और सेम एरिया इज दैट, 2 into हाफ B इंटू H. अगर इसको कट कर दीजिएगा तो B इंटू H.
but h is the altitude height from top to perpendicular to the opposite sides. आप यहां से करिए, जहां से करिए, यहां से करिए, कहीं से करिए, बट वन पॉइंट टू द अपोजिट साइड होना चाहिए. तो अब पैरेललोग्राम की एरिया जो आपका 2 इंटू बी इंटू एच रखना पड़ेगा, बेस इंटू हाइट. अब देखिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन थ्री डायमेंशनल. अब इस रूम को ले लीजिए, इस रूम को लीजिएगा तो ये लेंथ हो जाएगा, ये ब्रेथ हो जाएगा, ये हाइट हो जाएगा. ओनली थ्री पैरामीटर, लेंथ, ब्रेथ, बेस हो गया और हाइट. और यहां पर देखिएगा हाउ मेनी वॉल्स, 4 वॉल्स, अपोजिट वॉल्स एरिया इज इक्वल, रूफ एंड बॉटम इज इक्वल. सो आपको साइज वॉल पूछ रहा है या टोटल सरफेस का एरिया पूछ रहा है. तो टोटल सरफेस एरिया इज 6 और टोटल वॉल एरिया इज 4 और अपोजिट वॉल आर इक्वल. अब उसी को देखिए यहां पर निकाला गया है, जो है इसको कुबाइड बोलते हैं. जो इस रूम का साइज है कुबाइड है. क्यों? क्योंकि लेंथ, ब्रेथ, हाइट में भी डिफरेंट, बट अगर लेंथ, हाइट, ब्रेथ सेम हो जाएगा तो क्यूब हो जाएगा. जो है ओनली द सिंपल थिंग. अब देखिए 4 वॉल, 1 फ्लोर, 1 रूफ, ये हमने लिख दिया है. अब देखिए फ्लोर एरिया, देखिए अगर ये L है और B है तो फ्लोर एरिया का एरिया हो जाएगा L इंटू बी, और द सेम इज द रूफ एरिया, बिकॉज एरिया इसका भी सेम है, ये भी सेम है. तो आपका जो है ये बहुत क्लियर होना चाहिए कि एरिया L इंटू बी है और दूसरा एरिया B इंटू एच है. ये एक वाल का है, इसका एरिया उसके एरिया बराबर हो जाएगा. और तीसरा है L इंटू एच, L और H. तो 3 एरिया है. अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चीज, कुछ क्वेश्चन है आस्क. तो एरिया ऑफ द 4 वॉल इज इक्वल टू 2 इंटू बी एच, देखिए बी इंटू एच एक ये है, प्लस 2 इंटू एल इंटू एच, 2 कॉमन ले लीजिए, 2h एल प्लस बी. दिस फार्मूला ट्वाइस इंटू एच इंटू ब्रैकेट में एल प्लस बी इज द एरिया फॉर वॉल्स. वॉल नहीं वॉल्स होता है जो. अब देखिए इट फॉर्म्स ए 4 राइट एंगल ट्रायंगल एज, डायगोनल. देखिए डायगोनल में देखिएगा, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, समझ लीजिएगा. जो मैं इस फिगर को एग्जांपल देकर दूंगा, जो मतलब जो अब डायगोनल क्या होगा. डायगोनल क्या हो, देखिए अगर आपका ये आपका हाइट है, या देख लीजिए, और इसको आप मिला दीजिएगा और इसको मिलाएगा तो ये डायगोनल हो जाएगा. ध्यान सुनिएगा. और ये क्या है, ये डायगोनल है, ये डायगोनल है बेस के स्क्वायर रेक्टेंगल का. तो अगर इसका L है और ये B है तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, मींस दिस लेंथ बिकम्स अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर. और इसको H का एक लाइन ये हो गया, एक लाइन ये हो, तो ये भी रेक्टेंगल फॉर्म कर गया. तो इसका डायगोनल क्या होगा, हाइट स्क्वायर प्लस हाइपोटेनस स्क्वायर, ये L स्क्वायर B स्क्वायर है. तो डायगोनल बिकम्स L स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर. तो ये फार्मूला देखिए आपको यहां पर दिया हुआ है, और अंडर रूट कर देंगे तो उसका लेंथ निकल जाएगा. सो वेरी सिंपल, बट इट शुड कम इन द माइंड ऑफ द स्टूडेंट. द टीचर शुड टीच इन सच वे दैट इट शुड इंटर इन देयर माइंड. अब ये देखिए वेरी आपको एग्जाम्पल दिया गया है, बहुत डिटेल में मैं दिया हूं, इसको बहुत समझने की बहुत. कॉस्ट ऑफ द फेंसिंग ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 35 रुपीज पर मीटर इज 598. जरा ध्यान सुनेगा, यानी कॉस्ट रेट जो है 35 रुपीज पर मीटर है, ठीक है ना. अब देखिए इफ द लेंथ ऑफ द फील्ड इज 60 मीटर फाइंड इट्स ब्रेथ. लेंथ दिया हुआ, ब्रेथ निकालना है. अब देखिए अब बाय यूनिटरी मेथड क्या होता है, देखिए 3.5 रुपीज इज द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर दिया हुआ है. अब देखिए 1 रुपीज का कॉस्ट क्या होगा, कम होगा, 1/3.5 मीटर. अब इफ यू नो 1 रुपया में अगर आपका 1/3.5 मीटर फेंस की जरूरत होता है तो 595 में क्या होगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 170 मीटर आ गया आपका जो. ठीक है, इसका मतलब इतने पूरे कास्ट का जो है आपका इतना मीटर लग गया. तो नो फेंसिंग क्या होगा, पेरीमीटर होता है तो 1 मीटर.
अब देखिए ये तो आपका पेरीमीटर निकल गया जो है। अब देखिए वी नो द पेरीमीटर जो 2 इंटू एल प्लस बी, पेरीमीटर अराउंड 70 मीटर यहां निकाल चुके हैं। 2 आपको पता है, एल पता, बी पता है, बी आप निकाल लीजिएगा। तो ब्रेड्थ आपका यूनिटरी मेथड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आपका जो है कास्ट पर मीटर दिया है और कास्ट दिया है तो पूरा पेरीमीटर का कास्ट निकल जाएगा, पूरा पेरीमीटर निकल जाएगा। जो जब पेरीमीटर निकल जाएगा तो अब इसी में देखिए अगर ब्रेड्थ दिया गया रहेगा तो लेंथ निकाल सकते हैं। सो देयर आर जस्ट सी देयर आर 3 unknown parameter: perimeter, length and breadth. Out of 3, 2 must be known. Rest is algebra. Transfer of the parameter from left to right or right to left and vice versa. अब यहां देखिए एरिया ऑफ द स्क्वायर इज 100 मीटर स्क्वायर। अब साइड पूछ दिया है तो अनलेस यू डोंट नो एरिया इज इक्वल टू 100 मीटर स्क्वायर, अगर फार्मूला नहीं पता है तो कैसे निकालेंगे? और इन सच केसेस that is a very important, one should know that 100 10 10 जा 100। अगर आपका 10 तक टेबल याद नहीं है तो आप 100 मीटर स्क्वायर को 10 स्क्वायर मीटर स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं। तो इसीलिए हमने कहा कि 0 से लेकर के 10 तक तोता की तरह टेबल याद होना चाहिए। ये दैट इज कॉल्ड द सिंगल डिजिट मल्टीप्लिकेशन शुड बी नोन इमीडिएटली। अब देखिए अब क्या किया गया, ए बिकम्स अंडर रूट 100 मीटर स्क्वायर। देखिए अंडर रूट 100 लिखा है, मीटर स्क्वायर नहीं मैं लिखा हूं क्योंकि मीटर स्क्वायर का स्क्वायर रूट करेगा तो मीटर हो जाएगा। 10 इंटू 10 10 स्क्वायर। अब देखिए अब इसको अंडर रूट कर लीजिए, साइड ऑफ ए स्क्वायर। कई तरीका करने के लिए। अब देखिए अब यहां पर देखिए, लेकिन यहां पर ध्यान रखिएगा मीटर लिखना जरूरी। अब इसी को मैं एक बहुत डिटेल में मैं यहां पर लिख दे रहा हूं जिससे कि आप समझ जाएंगे। जो है अगर यहां दिया हुआ कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू 100 मीटर स्क्वायर, कोई नहीं है, आप क्या कर लीजिए 10 स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर और करिए 10 इंटू मीटर का होल स्क्वायर। सिर्फ देयर इज मेनी वे बट यू नो द फंडामेंटल ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ सिंगल डिजिट। अब देखिए ये क्या, स्क्वायर रूट ले लीजिए और फिर इसका 1/2 कर दीजिएगा। यहां पर क्या करिए वही लिखिए 10 मीटर और स्क्वायर है 1/2, 2 कट गया, 2 कट गया, इज इक्वल टू 10 मीटर। बहुत सिंपल है। देखिए इफ यू नो द टेबल, इफ यू नो एडिशन, सब्सट्रैक्शन, स्क्वायर रूट, वेरी सिंपल प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड एनी अवर्स प्रॉब्लम। अब यहां देख लीजिए एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम इज, पैरेललोग्राम का फार्मूला शुड बी नोन। तो फार्मूला क्या है देखिए, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज, एरिया दिया है आपको, कह रहा है इफ इट्स एल्टीट्यूड इज ट्वाइस इट्स बेस। अगर एल्टीट्यूड बेस का दुगुना है फाइंड द बेस एंड एल्टीट्यूड। अब यहां पर क्या करना पड़ेगा कि आपको लिखना पड़ेगा कि एरिया इज इक्वल टू बेस इंटू एल्टीट्यूड, बी इंटू एच। अब देखिए अब क्या हुआ है, h जो है b से दुगुना है दिया हुआ है, एल्टीट्यूड h है, इस ट्वाइस ऑफ इट्स बेस, ऑफ मतलब मल्टीप्लिकेशन, यहां रख दीजिए। इन सच केसेस जो भी आपका ये कैलकुलेशन आता है वो किसी न किसी नंबर का स्क्वायर होता है। जैसे 12 इंटू 12 144, अगर 144 आ गया तो 12 का स्क्वायर वहीं पर लिख दीजिए, लेकिन गुणा स्क्वायर रूट निकालने लगेंगे टाइम कंज्यूम करेगा और कहेंगे कि हमको आईटी में यार हमारा रैंकिंग नहीं है। क्यों नहीं है भाई? जो लड़का को पता है कि 144 12 स्क्वायर, जिसको नहीं पता है तो जिसको पता है वो निकल जाएगा। आपको भी पता है लेकिन आपने प्रैक्टिस नहीं किया है। इसलिए मैं बार बार आईटी का नाम ले रहा हूं क्योंकि लोगों ने पूछा था हमसे कि जरा बताइए सर कैसे आएगा, डेली ये सब फार्मूला याद करना है। अभी देखिए लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रूम इज इन द रेशियो ऑफ 4:3 और 4:3 रेशियो का ही मतलब नहीं पता है तो क्या करेंगे? नहीं कर सकते हैं। तो या तो ऐसे करिए कि लेंथ अपॉन ब्रेथ इज इक्वल टू 4/3 करिए, या आप ऐसे लिखिए, अगर आप जानते हैं लेंथ को लेंथ करिए इज टू ब्रेथ 4:3, ऐसे भी लिख सकते हैं।
तो अब यहां पर देखिए, अब देखिए ये हो गया ना। अब देखिए, अब कह रहा कॉस्ट ऑफ द डेकोरेटिंग द वॉल इज ₹6.6 पर मीटर स्क्वायर इज इतना, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रूम। अब देखिए, अब यहां पर यूनिटी मेथड लगेगा। अब देखिए, ₹6.6 इज द कॉस्ट ऑफ डेकोरेशन ऑफ 1 मीटर स्क्वायर। तो ₹1 कितना लगेगा, कम लगेगा, डिवाइड हो गया। फिर 5082 ये कॉस्ट कितना होगा, इतना मीटर स्क्वायर हो गया। देखिए मीटर स्क्वायर में है, ये मीटर स्क्वायर में है। अब इतना मीटर स्क्वायर पता चल गया, और आपका ये पता है 4/3 = L/B, तो L = 4/3B हो गया। अब सिंपल फार्मूला लिख दिए, एरिया = 2 H × L + B। हियर L = 4/3B, कहीं कुछ नहीं करना है। H यहाँ पर है, H दिया हुआ है, 4/3B दिया हुआ है, B को कॉमन लीजिए। अब देखिए, अब यहाँ पर अगर लड़कों को ये नहीं पता है, ये सब बहुत सिंपल चीजें हैं। देखिए 4/3 और B है, और यहाँ B है, सिंपल। देखिए अब आपको वहां पर जो तुरंत जो है B को कॉमन लीजिए, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूं, B = 4/3 + 1। अब ये मिक्स फ्रैक्शन है, अब मिक्स फ्रैक्शन तुरंत दिमाग में आना चाहिए। तो 3 को इसमें मल्टीप्लाई, ये 7/3 आ जाएगा, एंड यू कैन कैलकुलेट वेरी इजीली द वैल्यू ऑफ L। B निकल गया तो L आप यहां से निकाल सकते हैं, बहुत सिंपल। बट अगेन आई एम सेइंग, if you want to go for any engineering, basic science, basic math, I will not say the chemistry, but in chemistry also math is lot of application of mathematics. So you should know the fundamental from the nursery to 12th class. All the formulas should be in your mind, whether it is a physics or mathematics or chemistry. अब देखिए area parallelogram is 338 meters. Altitude is twice the base. अब आपको ध्यान में रहना चाहिए बेस क्या, एल्टीट्यूड क्या है। Then find the length of base and altitude. अब देखिए, let us assume length of the base is B. पहले मैंने नहीं कहा था, लेकिन इसमें B को एज्यूम करना पड़ेगा। अब देखिए B एज्यूम है, then height or altitude is equal to twice B, twice कह रहा है, तो 2B हो गया। Now H is also in terms of the base. अब देखिए, एरिया इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट, एरिया इज इतना, बेस इज इतना, कैलकुलेट करिए। अगर आपका बी पता चल गया तो एच तो ट्वाइस हो जाएगा, सिंपल। सिमिलरली द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल फील्ड इज दिस किलोमीटर। अब ये किलोमीटर में, ध्यान से सुन लीजिएगा, and length is twice the breadth. Find the area of the field in kilometer square and hectare से पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा। Let us assume breadth of B, length becomes 2B. We know the formula. Perimeter is equal to 2L into B. Perimeter किलोमीटर में दिया है, ध्यान सुन लीजिएगा। फिर ये जो भी B आएगा ये किलोमीटर में आएगा, और B किलोमीटर में आ गया तो लेंथ भी B क्या, हाँ राइट, ये आपका B इज इक्वल टू 0.1 किलोमीटर और L इज इक्वल टू कितना है, 2B है। तो ये आपका जो है ये किलोमीटर में ही होगा, मीटर में नहीं होगा। देखिए हमसे भी गलती हो रहा है, ये ध्यान रख लीजिएगा। ये गलती जान कर नहीं होता, ये अनजान में फ्लो में जब पढ़ाया जाता है तो गलती हो जाता है, लेकिन आप गलती करेंगे तो इसके लिए प्राइस चुकता करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए, अब एरिया क्या हो गया, L इंटू बी। देखिए ये भी किलोमीटर है, ये भी किलोमीटर है, 0.02 किलोमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या है कि अगर आपको किलोमीटर स्क्वायर हेक्टेयर में कन्वर्जन ये नहीं पता है तो आप सवाल नहीं लगा सकते। तो इतना तो याद रखना पड़ेगा कि 1 किलोमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 हेक्टेयर। तो 100 का मल्टीप्लाई कर दिया हेक्टेयर में, आपका आंसर आ गया। अब हमने ये नहीं दिया था, लेकिन इसको एडिशनली याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये हेक्टेयर इज कन्वेंशनल बट नॉट टेक्निकल यूनिट। खेत हेक्टेयर में ही बात किया जाता है, ऐसा यूनिट्स। अब देखिए, अब यहां पर भी देखिएगा, जो अब यहां पर ये जो प्रॉब्लम मैंने दिया हूं बहुत इंपॉर्टेंट दिया हूं। इस तरह के लैंग्वेज प्रॉब्लम में फिगर पहले बनाइए, और फिगर बनाएंगे तो आपको प्रॉब्लम बहुत इजी हो जाएगा। जैसे अब इसने कहा है कि फुटपाथ 1 मीटर वाइड along the outside grass grazing
प्लॉट 28 मीटर बाई 18 मीटर। तब देखिएगा जो है पहले हमने 28 मीटर और 18 मीटर का हमने रेक्टेंगुलर ग्रासिंग एरिया बना दिया है। अब ग्रास एरिया पर तो चढ़ नहीं सकते हैं, वॉक कर नहीं सकते हैं, लेकिन उसके चारों तरफ जो है 1 मीटर का जो है फुटपाथ बनाया गया है। फुटपाथ बनाना है, फुटपाथ बनाना है। अब 1 मीटर वाइड तभी होगा जब 1 मीटर इधर होगा, 1 मीटर इधर होगा, 1 मीटर इधर होगा, 1 मीटर इधर होगा, तो एक बिग आपका रेक्टेंगुलर बन जाएगा जो इसके अराउंड में 1 मीटर डेप्थ का है। तो इफेक्टिव लेंथ क्या हो जाएगा, देखिए 28 ये है, 1 ये है, 1 ये है, तो 30 मीटर हो गया। उसी तरह से 1 मीटर 1 मीटर 18 मीटर, ये आपका 18 मीटर नहीं होगा 20 मीटर हो जाएगा, क्योंकि 18 मीटर ऑलरेडी ये है, 18 मीटर ये ऑलरेडी, हाँ ये 18 मीटर रहेगा क्योंकि हमने इधर ही बढ़ाया है जो है, ठीक है, तो ये 18 मीटर ही रहेगा। तो अब ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक 30 मीटर हो गया, ये 30 मीटर का स्टिप हो गया, ये 18 मीटर हो गया, 30 मीटर का, तो ये एरिया बराबर होगा और ये एरिया बराबर होगा। या तो ABCDEFGH लिख दीजिए, आई जुलाई। अब देखिए 28 और 18 मीटर का पहले हमने लिया है along the outside, then this figure becomes this। अब देखिए फिगर 1 इज विदाउट 1 मीटर पाथ, फिगर 2 इज 1 मीटर वाइड पाथ आउटसाइड ग्रेजिंग। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखिए लेंथ ऑफ द 1 मीटर वाइड पाथ क्या होगा, 30 मीटर ये होगा, 30 मीटर ये होगा, 1 मीटर चौड़ा होगा, तो 30 मीटर एंड 30 मीटर, और ये क्या होगा 18 मीटर जोड़ दीजिए, 96 मीटर आ गया जो है। अब देखिए एरिया ऑफ द टाइल्स क्या होगा, L इंटू बी 1 मीटर है, तो 96 मीटर 1 मीटर 96 मीटर स्क्वायर। अब देखिए अब यहाँ पर कॉस्टिंग दिया हुआ है, यूनिटी मेथड लगाना होगा, क्या है 0.16 मीटर स्क्वायर, कहीं देखिए लिखा गया होगा जो है, हाँ देखिए 40 सेंटीमीटर इंटू 40 सेंटीमीटर, बात करके मीटर स्क्वायर में है, तो इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर स्क्वायर में, तो मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.16 मीटर स्क्वायर आएगा। कैसे आएगा वो मैं बता दे रहा हूं, देखिए अब ये एरिया है 40 सेंटीमीटर इंटू 40 सेंटीमीटर, लिखिए 40 सेंटीमीटर इंटू 40 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे तो 1/100 से डिवाइड करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इंटू 1/100 मीटर इंटू 40 इंटू 1/100 मीटर, ठीक है। अब देखिए 1 0 यहां कट जाएगा और 1 0 यहां कट जाएगा, तो क्या बचेगा 4/10 इंटू 4/10 मीटर स्क्वायर, क्योंकि इसका पावर 1 नहीं, इसका पावर 1 मीटर स्क्वायर हो गया। अब 16/100 और 16/100 है, इसका मतलब ही होता है 0.16 मीटर स्क्वायर। आई शुड नॉट मेंशन ऑल दिस थिंग बिकॉज इट इज, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू, अगर 16/100 है और यहाँ पर 2 0 है, तो 2 0 इधर 2 अंक करके यहाँ दशमलव लगा दीजिए, 0.16 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। वेरी all these I have already practiced, I have given for practice for the students, they should know. Same way here, just go similar way, you can do all these things. अब यहां पर कास्ट पूछा गया है, देखिएगा ध्यान रखिएगा, वहां पर इसमें देखिएगा, यहां पर जो है आपको जो टाइल्स की बात पूछा है, क्वेश्चन कैन बी एनीथिंग, कि इतना मीटर स्क्वायर एरिया में एक टाइल्स है तो 1 मीटर स्क्वायर में कितना टाइल्स होगा, फिर इतना मीटर स्क्वायर कितने टाइल्स होगा। लेकिन अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखिएगा, अब यहां पर पूछ लिया है आपका रूफिस पूछा है सेम प्रॉब्लम, सो यू कैन जस्ट गो ग्रासिंग प्लॉट विदाउट पाथ, रेक्टेंगुलर ग्रासिंग पाथ विद पाथ। आई हैव जस्ट ओनली हैव टू ऐड हियर, ऐड दिस प्लस दिस, इतना हो गया आपका जो है, क्योंकि जो है, और उसी तरह से ये सब इसमें कैलकुलेशन में दिया हुआ है, कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है जो है, इसको फॉलो कर लीजिएगा। अब देखिएगा, अब सर्किल भी 2D है, बट यू गो पेरीमीटर, रेशियो ऑफ ए पेरीमीटर ऑफ ए सर्किल एंड इट्स डायमीटर इज ऑलवेज कांस्टेंट, माने पेरीमीटर सर डायमीटर इज इक्वल टू कांस्टेंट 22/7 इज इक्वल टू 3.14। लेकिन मैं आपको एडवाइस दूंगा, पाई लिखिए और पाई को लास्ट में कन्वर्ट करिएगा 22/7 का, पहले मत करिए, नो देयर इज नो 3.14 ऑफ दिस, अदरवाइज कंफ्यूज।
और दिस क्लास 22/7 is given in such a way that it will cut क्रॉस कटिंग। अब देखिए, और पेरीमीटर को क्या लिख सकते हैं, पाई इंटू डी लिख सकते हैं, आर 2πr लिख सकते हैं। दोनों फार्मूला पता होना चाहिए। क्यों? अगर सरकमफ्रेंस दिया होगा तो डायमीटर पूछेगा तो सीधे इसको यूज करिए, रेडियस पूछेगा तो इसको यूज करिए। इट डिपेंड्स अपॉन क्वेश्चन, व्हाट्स प्रॉब्लम। इसको एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं आप, बड़ी सिंपल है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जो है, कोई रिंग ले लीजिए, कट करिए, उसको चौड़ा करिए, नापिए, रेशियो आपका आ जाएगा। जो अब एग्जाम्पल दिया हुआ है, अब देखिए, ध्यान रखिएगा। ए सर्कुलर रोड रन्स अराउंड ए सर्कुलर गार्डन। सर्कुलर गार्डन है और रोड इधर चारों तरफ है, ठीक है। सर्कमफ्रेंस ऑफ आउटर एंड इनर सर्किल इज 110 मीटर और 88 मीटर। अब देखिए, सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है तो क्या कर सकते हैं आप, रेडियस निकाल सकते हैं, यहां से दोनों का रेडियस निकाल सकते हैं, r1 r2। अब देखिए 2πr1 इज 110/2π। ध्यान देखिएगा, अभी यहीं पर नहीं खत्म होता है। सर्कमफ्रेंस ऑफ द इनर सर्किल इज r2, ये पाई के टर्म में ही लिखा गया है, ध्यान रख लीजिएगा। तो विड्थ कितना हो जाएगा, जो बड़ा होगा छोटे घटा r1 - r2। अब यहाँ देखिए डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को केवल सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 110 - 88/2/π। ध्यान सुनिएगा, 110 और 88 क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। नहीं, 110 और 88 इंटू 1/2π दिया हुआ है, तो 110 और 88 में क्या आ गया, 22 आ गया। अब देखिए, फिर यहाँ पर 2π है, तो अब ये भी कर सकते हैं, 22/7 लिख सकते हैं, 7 ऊपर चला जाए, 22 को कैंसिल कर सकते हैं, कुल मिलाकर के आप 3.5 मीटर पाएंगे। मेनी वेज। अब देखिए, इसी चीज को मैं लिख रहा हूं यहां पर, इसी चीज को लिख रहा हूं, 22 इंटू 1/2π है, ज्यादा ध्यान से सुनिएगा। और फिर इसको लिख सकते हैं 22 इंटू 1/2 इंटू 22 और ऊपर 7 चला जाएगा, कट गया। 7/2 इक्वल टू 3.5 मीटर। तो इस तरह के प्रॉब्लम में, क्लास 7th के प्रॉब्लम में आप पाई को 3.14 मत लिखिए, दिस इज माय एडवाइस, और लास्ट में इसको सॉल्व करिए, नॉट इन बिटवीन, टाइम वेस्ट होगा। अब देखिए सिंपल थिंग्स, पाइप वायर इज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल। देखिए, अब यहां पर फिगर हमने बना दिया है, देख लीजिएगा, 18 सेंटीमीटर लंबा, 15 सेंटीमीटर ब्रेथ, लेंथ एंड ब्रेथ, रेक्टेंगुलर शेप, 15 सेंटीमीटर, अपोजिट साइड 18 सेंटीमीटर। अब इसको क्या किया गया है, पेरीमीटर क्या हो गया, ये वायर है, सीट नहीं है, दिस इज वायर, ऑल दिस आर वायर। अगर इसको कट करके सर्किल बनाना है तो इसकी पेरीमीटर क्या होगा, सेम होगा। तो इसका पेरीमीटर निकाल लीजिए। देखिए, रेक्टेंगल 66 सेंटीमीटर और इसका 2πr 66, तो आर को इधर भेजिएगा, अभी फिर कन्वर्ट मत करिएगा, देखिएगा तो क्या आ गया, 66 2π, फिर पाई को 22/7, 7 ऊपर चला जाएगा। अब देखिए, सिंपल वे you can find, provided you should know in advance. Don't convert pi into 3.5 or 22/7 in beginning or in between. Convert at the last. अब देखिए, इस फिगर का पेरीमीटर कहा देने के लिए, अब देखिए ये 1/4 सर्किल है, 1/4 है पेरीमीटर, ये वाला 1/4 है, ये आपका रेडियस है, ये रेडियस है। R 21 मीटर दिया है, ये भी 21 मीटर है, ये 1/4 2πr हो जाएगा। तो 21 मीटर 1/4 2πr, सिंपल ये कैलकुलेट किया। अब यहाँ पर देखिए 0.7 मीटर 3/4, तो 3/4 है, तो ये आ गया। अब यहाँ पर देखिए, अब इसके लिए पेरीमीटर का क्या है, पेरीमीटर इक्वल टू 7 मीटर प्लस 7 मीटर, और ये डायमीटर है, ध्यान रखिएगा, तो 1/2πr, तो आधा हो गया, शेप क्या हो गया, कोन हो गया। तो इसका पेरीमीटर, ये लेंथ नहीं माना जाएगा, ध्यान रख लीजिएगा,
कोण में ये लेंथ माना जाएगा, ये 2D का है जो। उसी तरह से ये भी एग्जाम्पल सिमिलर वे में है, मतलब जो कोई दिक्कत नहीं है। बट आई विल एडवाइज द सेम प्रॉब्लम शुड बी प्रैक्टिस मेनी टाइम्स। दिस इज नॉट हिस्ट्री एंड भूगोल एंड ज्योग्राफी, प्रैक्टिस की सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। अगर आप कहते हो कि IIT में जाना है तो उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब देखिए, अब देखिए ये भी एग्जाम्पल है आपका, बहुत सिंपल है, इसको बड़े आराम से कर लीजिएगा। ए कैरेज व्हील मेक्स 1500 रिवोल्यूशन। साइकिल मान लीजिए, साइकिल का पेरीमीटर निकाल लीजिए और 150 टाइम्स चलेगा तो 1500 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। वही चीज यहां पर हुआ है। 2πr इंटू 1500, रिजल्ट आपके सामने आ गया। जो आर आपका बड़े आराम से निकल जाएगा। जो अब मैं आ रहा हूं जो सबसे कठिन है, एरिया ऑफ ए सर्किल 2D का, वो बच्चों को अच्छी तरह से यहां समझ लेना चाहिए, जो मैंने स्टेप बाय स्टेप ट्राई किया है करने का। स्टेप 1, सर्किल हमने बना दिया है और 4 पार्ट्स में हमने इसको कर दिया है कन्वर्ट। अब देखिए 4 पार्ट्स, अगर आप 1 पार्ट को देखेंगे तो हमने ऐसे लिख दिया है, दूसरे पार्ट को ऐसे कर दिया, तीसरे पार्ट को ऐसे, चौथे पार्ट को ऐसे कर दिया। ये आपका जो है एरिया कवर्ड बाय द लाइंस, और इसको आर्क बोलते हैं। यहाँ पर 4 आर्क है, 4 आर्क है। 8 आर्क करेंगे तो इस तरह से बनेगा, ध्यान सुनिएगा। 16 आर्क करेंगे तो ऐसे बनेगा। आगे बढ़ेंगे तो क्या पाएंगे कि ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, ये रेक्टेंगुलर का शेप ये ले लेगा। जो है अब कैसे, अब देखिएगा, जरा ध्यान से सुनिएगा। डिवाइड इनटू 32 सेक्शन, आर्क इज फर्दर रिड्यूस टू, जो भी मैंने आपका आता है वो आ जाएगा। जो अब देख, अल्टीमेटली इट विल फॉर्म ए रेक्टेंगल एज, ये क्या है, रेडियस है, तो ब्रेड्थ आपका रेडियस हो जाएगा। जरा ध्यान सुन लीजिएगा, रेडियस। और ये ऊपर वाला पेरीमीटर का पार्ट है, पेरीमीटर को 2 भाग में बांट दिया, तो हाफ 2πr, हाफ 2πr। तो अपोजिट साइड इक्वल, अपोजिट साइड इक्वल, एरिया क्या होगा, ब्रेड्थ इनटू दिस। देखिए एरिया इक्वल टू हाफ, ध्यान सुनिएगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, 2 कर गया πr स्क्वायर। ये इसको बोलते हैं प्रूव दैट, अगर क्वेश्चन आ गया, प्रूव दैट द एरिया ऑफ ए सर्किल इज πr स्क्वायर, तो आपको ये 4 स्टेप्स जो है लिखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, माइंड में पिरोना पड़ेगा, तब आप निकाल सकते हैं। और ये भी ध्यान रखिएगा, अब यहां पर भी क्या है, एरिया अननोन है, रेडियस अननोन है, ठीक है, 2 पैरामीटर अननोन है। अब इसको डायमीटर में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, अब मैं बता रहा हूं। देखिए इसलिए मैं छोड़ दिया था। देखिए पाई इंटू आर जो होता है D/2 का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, पाई इंटू D स्क्वायर अपॉन 4, R 1/4 इंटू पाई D स्क्वायर। अब यहां पर अगर एरिया दिया, डायमीटर पूछ रहा है, तो यू हैव टू यूज दिस फार्मूला। इफ एरिया इज गिवन रेडियस, तो ये फार्मूला यूज करना पड़ेगा। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रेस्ट इज वेरी सिंपल। अब ये सब वेरी सिंपल है, इसमें कोई वो नहीं है। एरिया बाय सेकंड मेथड इसने कह दिया है निकालने के लिए। अब देखिए, अब ये आपका जो है आर को ऐसे ही दिखाते हैं, OBA1, A1B कर दीजिए, जो भी कर दिए, एरिया है। अब इसका आर का एरिया जो है इसके एरिया से बड़ा है। यहां पर हमने B1 कहाँ है, B1 तो कहीं दिखाई नहीं दिया है। यानी B1 का मतलब फर्स्ट मतलब, तो OAB1, OAB2, OA3। अब देखिए ये आर्क के घटता चला जा रहा है। आर्क OAB कैन बी कंसीडर एज ए राइट एंगल। जब छोटा होता चला जाए तो राइट एंगल हो जाएगा जो है। तो राइट एंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू परपेंडिकुलर। तो हाफ ये हो गया,
बेस रेडियस हो गया, परपेंडिकुलर ए बी हो गया, और इसको जोड़ दीजिएगा तो ए बी जोड़ेंगे तो पूरा जो है आपका जो है पेरीमीटर पे सर्किल आ जाएगा। तो आपका दूसरे तरह से आपका ये पाई आर स्क्वायर आ गया जो है सेकेंड मेथड। अब रेस्ट आपका जो बड़े आराम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अब यहाँ पर दिया है कि डायमीटर ऑफ द टू सर्किल एरिया इज रेशियो 3/2, तो R1/R2 इक्वल टू 3/2 करना पड़ेगा, या D1/D2 इक्वल टू 3/2 करना पड़ेगा, कोई कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं जो है। अब यहाँ पर डायमीटर शायद पूछा है, रेशियो ऑफ द रेडियस, आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ ए सर्कुलर हुज सर्कमफरेंस इज 77 मीटर। अब देखिए D1/D2 ये हो गया, R1/R2 3/2, D1/D2 3/2, क्योंकि इसका 2 कैंसिल हो, ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखिए सो R1 बिकम्स 3/2 R2, कोई भी फॉर्म ले सकते हैं। फर्दर एरिया ऑफ टू सर्किल इज इक्वल टू पाई R1 स्क्वायर पाई R2 स्क्वायर, रेशियो का A1/A2 देखिए। अब R1 R2 की वैल्यू रख दीजिए, 9:4 आ गया। सरकमफरेंस इतना दिया हुआ है, R निकल गया, सिंपल थिंग, नथिंग मोर। यहां पर भी वही चीज है। अब सरकमफरेंस का रेशियो दिया हुआ है, R1/R2 हो गया, R1 को R2 के टर्म में लिख सकते हैं, एरिया ऑफ द ये एरिया का रेशियो निकालिए, वो निकल जाएगा जो है। सिंपल दिस वे दैट इज हाउ इन ऑल द केसेस माय एडवाइस दैट फार्मूला फॉर एवरी टॉपिक शुड बी रिमेंबर जस्ट लाइक ए टो करते हैं ना। अब कोई सिंगल डिजिट का फार्मूला नहीं पता है तो आपका 3 का 3 स्क्वायर 9 कैसे कह सकते हैं आप, 9 स्क्वायर इक्वल टू 81 कैसे कह सकते हैं, 6 स्क्वायर इक्वल टू 36 कैसे कह सकते हैं, या 36 का √6 होगा, 81 के √9 होगा। ऑल ये फार्मूला शुड बी नोन। थैंक यू वेरी मच।